Hi friends, welcome back. This is Vijay Praveen Singh from SRK Academy, and today we will be speaking about the psychological test in the service selection board interview. In the day two, all those who have got screened in, they go forward with the remaining test, uh, which begins with the psychological test. So let's see what are the things which are what are the tests which are being taken in the psychological test, and what are the tips and tricks which will help you through the psychological test. First, let's try and understand what basically is a psychological test. Psychological test is being conducted by a skilled person, usually a psychologist. They have got their own techniques, scientific techniques, proven techniques, which are very accurate as far as mapping the personality or the brain of a person. Like I have already told you in the previous class that the personality of a person is seen, or it is being subject to test regarding three or four things that begins with thoughts, words and deeds. So thoughts is was what the psychological test is basically dealing about. It is about your thoughts, it is about your willpower, it is about your personality as per your thought process. Do you give up very easily? Do you have a negative thinking, or do you have a positive outlook towards life, towards problem? Do you have that problem solving ability? These are the basic tests which are being uh, conducted, basic things, personality traits which are being looked for during the psychology test to see if the candidate is fit for armed forces or not. So, the psychological test, it is divided into four parts. Firstly, the thematic appreciation test, word association test, situation reaction test, and self description. So, I will cover each one of them in quite detail. Basically, but before that, basically you must understand what are they trying to do, and you must try and help the psychologist with your best of your performance in the psychological test. The intention here is to see the officer like qualities. This will be the last lecture of our series of lectures. So you can see what are the 15 officer like qualities which they are looking at, either in the psychological test or the interview, or during the group discussion, or during the outdoor or indoor GTO task, or group task, or command task. Anywhere these 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर बीइंग लुक्ड फॉर. तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं, इसके लिए आप मेरे लास्ट लेक्चर तक बने रहिएगा. बट नाउ लेट्स कवर व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली आपका परसेप्शन देखते हैं कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट इसमें होता है कि एक आपको फोटो दिखाई जाती है, एक जो कि बहुत धुंधली सी होती है. यू हैव टू राइट ए स्टोरी, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द स्क्रीनिंग टेस्ट की स्टोरी, हाउ टू गो अबाउट राइटिंग द स्टोरी, how to go about identifying the characters in the story, and how to have a positive outcome and complete the task which you initially started for example going for an examination or picnic. You complete that original task for which you started after completing the situation or task in the situation which is an emergency situation, an accident, or a medical emergency, or whatever the picture depicts. तो ये होता है बेसिकली आपका थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 12 स्लाइड्स दिखाई जाती हैं. 13 स्लाइड यूजुअली ए ब्लैंक स्लाइड होती है. ब्लैंक स्लाइड में कुछ नहीं रहता, एंड यू आर सपोज टू राइट ए स्टोरी अबाउट योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, you are planning to join the armed forces as an officer. That's why you come here to give the interview. तो आपके क्या एम्बिशंस थे, आपने कैसे इसकी तैयारी की, क्या क्या आपने अपनी शॉर्टकमिंग्स देखी जिस पे आपने इम्प्रूव करने की कोशिश की. तो राम श्याम या सीता गीता के नाम से एक हीरो या हीरोइन बना के आप वो स्टोरी बना सकते हैं, और उसमें आपने बेसिकली अपनी स्टोरी लिखनी है कि आपने क्या क्या शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई की, और आपने किस शॉर्टकमिंग्स के ऊपर कितनी मेहनत करी. कि हो सकता है आपके स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम था, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, या पब्लिक स्पीकिंग में आपको इश्यूज थे, या करंट अफेयर्स आपके ठीक नहीं थे, है ना. तो जो भी चीजें आपने इस दौरान टेस्ट के लिए आपने तैयारी करी थी, तो उस टेस्ट की तैयारी को आपने कैसे कंप्लीट किया, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी अपनी आप ब्लैंक स्लाइड में दे सकते हैं.
देन कमिंग टू द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें एक वर्ड्स फ्लैश किए जाते हैं जिसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस आपने बिल्कुल छोटे बनाने हैं और सेंटेंस से बेसिकली आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है कि आपको कई नेगेटिव वर्ड्स भी दिए जाते हैं बीच में, तो उसका आपका जो आउटकम है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नाइफ इज यूज्ड फॉर डूइंग ऑफेंस एज वेल एज इट इज यूज्ड फॉर पुटिंग बटर ऑन द ब्रेड। सो अकॉर्डिंगली ये आपकी साइकोलॉजी जो है हमेशा पॉजिटिव आउटकम की तरफ जानी चाहिए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में यू आर प्रेजेंटेड विद सिचुएशंस व्हिच कैन बी कि कोई रॉबरी करने आ गया या यू आर गोइंग एट सम प्लेस एंड कुछ आपको इमरजेंसी सिचुएशन मिलती है या प्रेजेंट की जाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो योर माय एडवाइस इज कि यहाँ पे जो भी आपके रिएक्शन है ये प्री डिटरमेंट या किसी और को देख के नहीं होने चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होने चाहिए, आपके फिजिक के हिसाब से होने चाहिए। और हर आदमी की, जैसे हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, वैसे हर आदमी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। सो यदि आप यहाँ पे सच बोलेंगे, अपना जो सही रिएक्शंस है वो बताएंगे, तो दैट विल बी गुड इन ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि वही क्वेश्चन जो है 15-20 क्वेश्चन के बाद में किसी दूसरे तरीके से किया जाता है, और वहां पे यदि आपने कोई डिफरेंट आंसर दे दिया या डिफरेंट रिएक्शन बता दिया, सो देयर विल बी ए कॉन्ट्रडिक्शन। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बीन टोल्ड कि बी फेयर, बी ट्रूथफुल एंड सही रिएक्शंस अपने दीजिए, सही प्रेजेंटेशन अपना दीजिए, जो आप हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं एंड यू विल गेट थ्रू। लेकिन अगर आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब अवॉइड कीजिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एज ए क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट या एज ए ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट, जो आपकी उम्र है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो भी आपके रिएक्शंस है, एवरीवन नोज कि वो रिएक्शन सही है, वो रिएक्शन दीजिए, वो ही सही होंगे। आप कोई ओवरडू करने की कोशिश मत कीजिए, रैम्बो बनने की कोशिश मत कीजिए, वन मैन आर्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके एक्चुअल रिएक्शंस है वो सही रिएक्शंस आपने देना है। और ध्यान रखना है कि इसमें 15 OLQs जो मेरे लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे, उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द आपके जो है रिएक्शन से आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देन कमिंग टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये आपका अपना ओन डिस्क्रिप्शन होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि आपने कैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना है। और ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपके इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले इंटरव्यूइंग ऑफिसर पढ़ता है, आपके GTO इसको पढ़ते हैं, उसी हिसाब से आपको देखते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट आपका जब असेसमेंट कर रहा होता है तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन वो देखता है और उसको चेक करता है कि आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन कितना सही है। बिकॉज इन साइकोलॉजी टेस्ट आप क्या हैं क्या नहीं है, वो सारे डिटेल्स साइकोलॉजिस्ट के पास में विद हिज साइंटिफिक टेक्निक चली आती हैं, उसके पास रिपोर्ट्स पहुंच जाती है। तो बी वेरी केयरफुल, बी योरसेल्फ एंड बी रिलैक्स्ड, बी कूल, बी calm बिफोर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। हैव ए नाइस स्लीप जस्ट बिफोर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड उसको एंजॉय कीजिए। इट इज ए प्रोसेस, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। सो कमिंग टू थीमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट, जैसा हमने बताया था स्क्रीनिंग में भी आपने ये टेस्ट दिया है और उसके बाद ही आप क्वालिफाई हुए हैं फॉर थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ऐसी सी पिक्चर दिखाई जाती है, उस पिक्चर के ऊपर आपने एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी रहती है। इट शुड हैव ए ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ पास्ट, और उसके बाद प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो सिचुएशन डिफाइन करते हुए फाइनली आपको दिखाना होता है कि एट द एंड इट शुड बी एन हैप्पी एंडिंग। एंड में आपने जो भी हुआ है उसका एक कंक्लूजन आपने देना होता है। ये पिक्चर्स जब आपको दिखाई जाती हैं, बेसिकली आपका परसेप्शन टेस्ट किया जा रहा होता है। इस परसेप्शन में आपके मेमोरी से गुड या बैड मेमोरीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, और ये टेस्ट का बेसिक इंटेंशन ही ये होता है। और इस टेस्ट को जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मैप करता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल क्वेश्चनेयर उसने पहले दिन आपसे फिलअप कराया था उससे मैप करता है। और दिस जो भी रिजल्ट्स हैं ये आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर और GTO ऑफिसर्स के पास में जाती है कि यस ये बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, ये सोचता है, ये ऐसा इसने लिखा है और ये एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, तो वंस द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज इंटरव्यूइंग तो ही हैज गॉट ऑल द डाटा अबाउट यू, वो बहुत अच्छे से आपको जान रहा होता है, समझ रहा होता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन कर रहा होता है। एंड सेम गोज विद द GTO। सो जो मैंने बार बार बताता रहता हूँ उसको आप ध्यान रखिए कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू स्पीक द ट्रुथ, डोंट ट्राई टू ओवरडू इट एंड डोंट अंडरप्ले योरसेल्फ।
प्रोटोकॉल्स, ये जो हम स्टोरी राइटिंग के लिए प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करने हैं, इसमें जैसे मैंने पहले बताया 12 पिक्चर्स जो रहती है नॉर्मल पिक्चर्स रहती है। 11th इज ए ब्लैंक स्लाइड, जिसमें आपने अपने बारे में या अपने लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ स्टोरी आपने बतानी होती है। इस पिक्चर में आपने आइडेंटिफाई ठीक से करना है, परसेप्शन यू मस्ट बी राइट, कि जो हीरो या हीरोइन उसमें आपने बनाया है या क्रिएट किया है वो कैरेक्टर सेम है जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, उनकी एज एंड उनके सेक्स मेल और फीमेल, ये आपने सही आइडेंटिफाई करना है। और उसमें जो भी एनवायरनमेंट दिख रहा है, जो थीम कोर है, उसको आपको मिस नहीं करना है। ऐसा ना लगे कि आप पहले से घर से स्टोरी सोच के आए थे और आपने वो स्टोरी वहां पे लिख दी। डोंट डू दैट। जो आपको परसेप्शन मिलता है, शॉर्ट स्टोरी बनाइए, थोड़ा सा पास्ट दीजिए, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताइए, हैप्पी आउटकम दीजिए। और इन केस योर हीरो और हीरोइन इज गोइंग has started for a picnic or exam or something, let him complete the task at the end. After completing, after doing this, solving out the प्रेजेंट प्रॉब्लम या करंट सिचुएशन में जो भी सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट करके हैप्पी एंडिंग करके देन ही शुड बी मूविंग अहेड फॉर हिज टास्क. So the tips for creating a story, I've already told you all these things, but you must remember the hero of the story should be the one who is giving the solutions. He should not be the center of the problems. He should not be the one who is creating the problem. He should be the one who is giving the solution, or is having that leadership key under any given circumstances as per the picture. He is giving a solution and he is giving a positive outcome to that story from the negative. Usually you'll find कि वो जो पिक्चर होती है उसमें कोई नेगेटिव सिचुएशन दिखाई होती है, एक्सीडेंट है या ऑपरेशन थिएटर है या वॉर जोन है, वट एवर सिचुएशन इट माइट बी, आपने उसको पॉजिटिव आउटकम देने के लिए अपने हीरो को यूज करना है एंड इट शुड एंड अप इन ए वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट या पॉजिटिव आउटकम. तो ये जो स्टोरी आप क्रिएट करते हैं उसमें सबसे पहले जो भी आपका मेन कैरेक्टर होता है, दैट इज द हीरो, उसके साथ में आप और क्रिएटिव जितने भी उसमें कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, यू हैव टू यूज ऑल दो स्टाफ ऑल्सो, ऑल दो सपोर्टिव कैरेक्टर्स ऑल्सो. और जितने भी मटेरियल्स उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि कई बार हम एक पिक्चर में कुछ आइटम्स मिस कर जाते हैं. यू डोंट हैव टू मिस एनी आइटम. कई बार आप देखेंगे कि स्टोरी जो दिखा रही है उसमें बहुत हेजी सा कॉर्नर में कोई आइटम या मे बी एक गन रखा हुआ था जो कि आपने मिस कर दिया, तो आपने पूरी सिचुएशन जो है एक ऑपरेशन थिएटर की बना दी, बट यू फॉरगॉट टू गिव ए रेफरेंस टू दैट गन. तो you have to be very careful while you are watching that hazy picture which is being shown for 30 seconds to you, or in your story you should not miss that thing. यदि ऑलरेडी एक ऑपरेशन थिएटर का सीन है जहां पे कोने में एक गन रखी हुई, तो कैन बी एनी पर्सन हु इज अ वुंडेड सोल्जर यदि गन है तो, कैन बी ए गनमैन और ए गार्ड जिसकी गन है, या इसी तरीके का कोई सिचुएशन आप देखें जिसमें गन मिस ना हो. यदि he is already in operation theater, he might be hurt accidentally or he might be hurt fighting with someone. Whatever your story is, don't miss that part कि जो भी उसके मटेरियल्स हैं या जो उस पिक्चर में चीजें दिखाई गई हैं, डिपिक्ट की गई हैं, तो आपका परसेप्शन शुड गैदर ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम दैट पिक्चर एंड देन मेक ए स्टोरी. इट शुड नॉट सीम कि आपने, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपने प्री कंसीव थॉट या नोशन के हिसाब से कोई स्टोरी बता दी है. और हर स्टोरी में जरूरी नहीं है कि आपका हीरो एक आर्मी ऑफिसर हो, या ही कैन बी एनसीसी कैडेट, ही कैन बी स्कूल गोइंग स्टूडेंट. और जो आपका बैकग्राउंड है, यू आर बेसिकली 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स किड और ए यंग एडल्ट, एंड उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस एक्सपोजर के हिसाब से आप स्टोरी बनाइए. एंड इट शुड बी अ रियलिस्टिक वन. इट शुड नेवर लुक कि एक कुछ आर्टिफिशियल या फ्रेम्ड स्टोरी आप प्रेजेंट कर रहे हैं. इट शुड बी वेरी ब्रीफ, क्रिस्प एंड प्रिसाइज. So now coming to how to keep your story brief, crisp and precise. So first you should ensure that you just give a 1 or 2 line of introduction कि what led to that situation, वो situation कैसे खड़ी हुई, क्या हुआ, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ या कैसे वो इंसिडेंट हुआ, and you come to 1 or 2 lines, what led to that situation. Then you explain what is happening this situation. It can be from 3 to 4 lines or as written 4 to 5 lines. और फिर फाइनली जो भी अब आपके हीरो हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया एंड हाउ डिड ही मैनेज्ड
और लेड इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में उन्होंने क्या लीडरशिप दिखाई और क्या एक्शन लिए जिससे कि वो स्टोरी या वो सिचुएशन जो है पॉजिटिव आउटकम की तरफ आई। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मिलती है और जो भी रिसोर्सेस उस स्लाइड में आपको देखने को मिलते हैं, उसको यूज करते हुए बिल्कुल ब्रीफली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली आपने बहुत छोटी सी सिंपल सी स्टोरी लिखनी है। Now coming to the do's and don'ts in the writing a story in the thematic appreciation test. योर स्टोरी शुड बी इन द पास्ट। आप पिछली कोई स्टोरी बता रहे हैं, जैसे कि आपने पास्ट का कोई स्टोरी डिपिक्ट करना है, शुड फील लाइक कि आपने कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का आप डिपिक्ट कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं। इसमें एक छोटा सा हीरो को जो है कोई छोटा नाम दे सकते हैं आप, राम, श्याम, जो भी नाम आपको पसंद है। और स्टीरियोटाइप मत कीजिए, सारी स्टोरीज जो है आपकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए कि चूंकि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए आए हैं तो सारी स्टोरीज में जो है आर्मी ऑफिसर को कहीं से भी आप डाल दे रहे हैं। स्कूल में भी आर्मी ऑफिसर है, बोटिंग क्लब में भी आर्मी ऑफिसर है, फ्लाइंग क्लब में भी एक आर्मी ऑफिसर है, तो दैट डजंट लुक नाइस। जो सिचुएशन में जो भी आपको दिख रहा है, आपको यदि सिचुएशन में कोई वकील दिख रहा है तो वकील की स्टोरी बनाइए, डॉक्टर दिख रहा है डॉक्टर की स्टोरी बनाइए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारी स्टोरीज को जो यू कम फॉर एसएसबी इंटरव्यू तो सारे आर्मी और एनसीसी वालों को ही आपने हीरो बनाना है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज योर साइकोलॉजिकल टेस्ट और इसमें ओवरडू मत कीजिएगा। सारी स्टोरी आपकी जो है पॉजिटिव आउटकम की तरफ जानी चाहिए, टीम वर्क दिखाना चाहिए, लीडरशिप ट्रेट्स आपके डिपेक्ट करने चाहिए, और जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी एट द एंड ऑफ द सेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो क्वालिटीज आपने कहीं ना कहीं अपने हीरो के अंदर में दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी कोई एडवाइस या मॉरल लेक्चर देने की कोशिश मत कीजिए। इट शुड बी एक शॉर्ट क्रिस्प ब्रीफ स्टोरी जो कि शुरू होती है पास्ट से, प्रेजेंट सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए, और फाइनली एट द एंड कि क्या हुआ और क्या कैसे सिचुएशन को हीरो ने हैंडल करके पॉजिटिव आउटकम पे लाया, वो करके स्टोरी कंप्लीट कीजिए। Now coming to how to convert a negative situation to a positive story. Usually you will find कि जितनी भी जो situation या slides आपको दिखाई जाएंगी that are of very negative nature. कहीं एक्सीडेंट हो रखा है, कहीं मारापीटी हो रही है, गोली चल रही है, बाढ़ आ गई है, कोई बह रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस सिचुएशंस यूजुअली बी नेगेटिव, लेकिन आपने इसको कोशिश करना है कि आपने पॉजिटिव आउटकम की तरफ लाइए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यदि आपको लग रहा है कि कहीं दो लोग के बीच में फाइटिंग हो रही है तो यू हैव टू हैव ए परसेप्शन कि ये दो लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर नेशनल लेवल बॉक्सिंग लेवल कंपटीशन करते हुए, मे बी गॉट इंजर्ड और बट ही स्टिल डिडंट गिव अप, ही स्टिल ट्राइड विद हिज लेवल बेस्ट एंड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी, ट्रेन्ड harder and got medal in the next championship. तो these are the type of stories which you can negative situations जो कि आप पॉजिटिव आउटकम की तरफ ले जा सकते हैं, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड एंड अलर्ट रहना पड़ेगा। और गिविंग ए टाइटल टू द स्टोरी ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। अगर कोई बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं कि यू हैव टू राइट ए ब्रीफ टाइटल टू द स्टोरी, प्लीज डू गिव। अगर वो नहीं बोलते तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस आपने साइकोलॉजिस्ट का, जीटीओ का, या जो भी स्टाफ आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोर्ड में है उनका सुनना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप लोग को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं स्क्रीन पे, इसको आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। और इसके ऊपर यू कैन प्लान ए स्टोरी कि एक सिचुएशन दिखा रहे हैं जिसमें कि एक नाला बहता हुआ है, इसमें नाव में दो लोग बैठे हुए हैं, एक नाविक है और एक बच्चा बहता हुआ जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन विच हैज बीन गिवन। इस पे आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है कि यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो यू हैव टू गिव ए पास्ट कि ये पिकनिक बनाने गए थे, या बाढ़ आ गई थी, इवैक्यूएशन मिशन पे थे, या वट एवर सिचुएशन, एक पास्ट सिचुएशन जो भी थी। उसके बाद वन पर्सन इज गोइंग, बहता जा रहा है, और इसमें जो भी आपका हीरो है राम और श्याम, he has to take some action, save him, save his life, and इस तरह से आपकी एक शॉर्ट स्टोरी इसके ऊपर बनेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एक हेजी सी पिक्चर है जिसमें कि एक छोटे से बच्चे को आदमी ने उठाया हुआ और एक बंदा जो कि शायद आपका हीरो होगा यूनिफॉर्म में है। ये यूनिफॉर्म में है, कैन बी एनसीसी पर्सन, कैन बी पुलिस पर्सन, कैन बी एन आर्मी पर्सन। और इस सिचुएशन में आप जो भी स्टोरी बना सकते हैं कि ये क्या स्टोरी है,
व्हाट हैज हैपेंड। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे एक, इन दोनों के अलावा हेजी सी पिक्चर में काफी क्राउड भी है। तो यू हैव टू सी कि इस स्टोरी में पास्ट आप क्या बनाते हैं और हीरो के लिए आपने क्या सिचुएशन प्रेजेंट की है और उसने अपने कौन सी अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले करते हुए एक एंड में कुछ बेटरमेंट किया है। नाउ द कोर थिंग हियर टू रिमेम्बर इज कि एक बच्चा है जो कि किसी एडल्ट की गोद में है। You have to frame your story accordingly. I am not giving advice on stories because what happens कि people try to grab that story and वही story बार बार जाकर के वो सोचते हैं कि ये यदि इंस्ट्रक्टर ने बताया है तो यही स्टोरी हमने जाकर के बनानी है तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में, आपके परसेप्शन में जो आप परसीव कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टोरी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी कि ऐसी सिचुएशन में आपने, आई एम जस्ट गिविंग ए लुक एंड फील कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में किस टाइप की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और हाउ यू हैव टू फ्रेम ए स्टोरी अराउंड दैट। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बेड के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है, एक और कोई बंदा है जिसका सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है। दिस इज ए स्टोरी। नाउ यू हैव टू बिल्ड ए सिचुएशन इन विच की व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या है, ये बंदा सो रहा है, ये बंदा बीमार है, ये बंदा इवैक्यूएशन की इसको जरूरत है, ये क्या सिचुएशन है। तो एंड इसमें जो आपको हाथ दिख रहा है वो पर्सन जो है वो आपका हीरो हो सकता है, इज कॉलिंग फॉर हेल्प और ही इज हेल्पिंग हिम और ही इज इवैक्यूएटिंग हिम। जो भी आप एक स्टोरी बनाते हैं इस पिक्चर के अराउंड पे वो स्टोरी बनेगी। और चूंकि इस पिक्चर में वो जो भी आपका हीरो इज नॉट सीन, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि ये हीरो है, ये इसका नाम है, ये इसकी एज है, ये मेल है या फीमेल है। विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल वैसी आप स्टोरी इसके ऊपर बना सकते हैं एजम्पशंस के ऊपर। ये स्टोरी हमने अभी कवर कर दी है। ये स्टोरी जिसमें एक एक्सीडेंट डिपिक्ट किया गया है कार से और छोटे से साइकिल में एक छोटे से बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है। देयर आर फ्यू पीपल हु आर सीन अराउंड। यू हैव टू मेक ए स्टोरी व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। नाउ नाउ व्हाट, कितनी ज्यादा इंजरी है, ये बच्चे को मेडिकल एड देनी है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और जो भी बंदे ये एक्सीडेंट साइट पे पहुंचा था, आपका हीरो कैन बी द स्मॉल बॉय कमिंग आउट फ्रॉम द शॉप, कैन बी एनीवन, ये लेडी भी आपकी हीरोइन हो सकती हैं। और इन्होंने आखिर में क्या एक्शन लिया, क्या पॉजिटिव आउटकम लाया, और वो अपना जो भी काम करने निकला था, टास्क करने निकला था, he has to complete that task। शॉपिंग करने निकला था, ऑब्वियसली शॉप का एरिया दिख रहा है, मार्केट का एरिया दिख रहा है, he should complete his shopping and come back home after completing this टास्क जो कि इमरजेंसी हुई है, उसका जो भी उसने काम किया है उसके बाद अपना काम करके मार्केटिंग करके he should come back home। This is a situation in which you can see there is a female, there is a male with a tie, and he's trying to cover up his face. This story is depicting a very negative situation। इस सिचुएशन में आपने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी आपने लिखनी है। ऐसे ही टाइप के आपको प्रेजेंट किए जाएंगे ऑप्शंस जिसमें कि आपने एक नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव स्टोरी आपने निकाल करके लानी है। So now in this situation, you have to see that one female who's lying down on the bed can be sick, or the person who is feeling very bad about it must get over this negative thought in which he is. He must go ahead and take some action, get the doctor, get the treatment done, and get the lady fit and fine again. So there are many other emotions which might be coming to your mind after seeing this situation, but you have to keep a control। and ऐसी negative situations के pictures को भी आपने positive outlook से देखना है और positive story देनी है। This again is a very simple story जिसमें कि a group of students may probably or kids are standing and there is one grown up person। पीछे एक आप बैकग्राउंड में एक फैक्ट्री की तरह से कुछ दिख रहा है जिसमें धुआं भी निकल रहा है, और ये दिस इज एन आउटडोर सीन। तो ये बेसिक आपका परसेप्शन होना चाहिए कि इस स्टोरी में जो भी सिचुएशन है, कैन बी ए टीचर टेकिंग द किड्स आउट टू सम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सम प्रोजेक्ट एट ए फैक्ट्री और ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और जो स्टोरी में आप देख रहे हैं उसके बीच में वो फील्ड्स दिखाई दे रही हैं जिसको क्रॉस करके जाना है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर वो बच्चों को देना चाहते हैं।
तो दिस कैन बी ए शॉर्ट स्टोरी। इसके ऊपर आप किसी को भी टीचर के बारे में आप ऐसी चीजें बता सकते हैं और ऐसी स्टोरी बना सकते हैं। Again, we have got a story in which we have got a classroom and a teacher. This is the simple theme which has been presented to you. As per your perception, you have to write this story. Now coming to word association test. Word association test is the thing in which the words are being projected at a very rapid pace, in which you have to write down a sentence. You have to make a sentence out of that words. Different type of real words are being shown to the candidates, and it has flashed at a very fast rate, so that you don't get too much time to think or manipulate. और इसमें actually आपकी real psychology आपकी बाहर आती है. You might be able to control, but usually आपके real psychology you have to be very careful कि इसमें आपके negative words पे negative psychology आप present ना करें. You have to be very positive. हर word negative words भी दिखाए जाएंगे, उसके आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने हैं और इमोशनली स्टेबल आपकी पर्सनालिटी लगनी चाहिए और आपके एटीट्यूड जो है पॉजिटिव लगना चाहिए. In this series of 60 words are shown in a projector, और ये रियल लाइफ सिचुएशन के वर्ड्स होते हैं जो कि आपको देने हैं, और जो जैसा मैंने बताया कि जो आप OLQs, मेरा जो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, डोंट मिस दैट. और OLQs को आपने कोशिश करना है, चाहे थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट हो या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो या जहां पे भी आपको मौका मिले, वो OLQs डिस्प्ले करने की कोशिश करनी है, बिकॉज यू नो कि दीज आर द चेकलिस्ट जिसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है. A word of advice here for writing VAT, you should write the correct serial number, because जो वर्ड्स बड़े तेजी से फ्लैश हो रहे होते हैं, यदि आप लंबा सेंटेंस बनाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे एक वर्ड, एंड यू माइट देन इफ यू हैव मिस्ड एनी वर्ड देन लीव इट ब्लैंक. आपके जो सीरियल नंबर है दैट शुड नॉट गो रॉन्ग. तो काइंडली टेक केयर अबाउट दैट थिंग कि ये मत भूलिएगा कि पहला वर्ड आपने देखा, दूसरा मिस कर दिया, और थर्ड जब आपने देखा तो थर्ड सीरियल नंबर पे आप उसको मार्क कीजिए और उसका सेंटेंस बनाइए, ना कि सेकंड की जगह. सेकंड आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं यदि आपने मिस कर दिया है तो. जैसा मैं बता रहा था, इसमें कई वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो कि आपको नेगेटिव वर्ड्स होंगे वैट में, और उसको आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में बनाना होगा. एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया हुआ है, sex ratio in Kerala is more, can be a good sentence, a positive sentence and a realistic sentence. Knife is used to put butter on the toast. Knife is used to cut the apple. Knife is used to cut the vegetable. Then impossible, that word is impossible. Then you can make a sentence. ये example है, प्लीज डोंट कॉपी इट. आपने बिल्कुल प्योर रहना है, बिल्कुल आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपके दिमाग में सोच आती है, वर्ड्स आते हैं, वो आपने देने हैं. These are just the examples which I am trying to tell you कि to understand how to go about handling negative situations and negative words. और इसमें जैसे आप OLQ वाला क्लास कर लेंगे, OLQs जो आप समझ लेंगे, तो यू हैव टू ट्राई एंड प्रोजेक्ट दोज OLQs in your hero, in yourself, and also in your psychological test, thematical appreciation or word association test. Now coming to the tips for writing VAT. It is not necessary that the word shown should be a part of the sentence and or starting of the sentence. आपका जो वर्ड है जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का पार्ट हो या सेंटेंस का शुरुआती वर्ड. प्रोवर्ब्स यूज करना अवॉइड कीजिए. अपना नॉलेज या ज्ञान दिखाने की कोशिश मत कीजिए. बी वेरी शॉर्ट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज. अवॉइड कीजिए शुड, कुड, वुड, इस तरह के वर्ड्स की बजाय मस्ट यूज कीजिए. और शुड, वन शुड डू दिस, वन कुड डू दिस, वन वुड डू दिस, ये वर्ड्स आप अवॉइड कीजिए. यदि कोई वर्ड आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर उसको खाली छोड़ दीजिए, बिकॉज नेगेटिव रिस्पॉन्स या गलत रिस्पॉन्स दे करके इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन फॉर यू. हैंड राइटिंग शुड बी गुड एंड लेजिबल, पढ़ने लायक होना चाहिए, और वर्ड को वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के फॉर्म में ही यूज कीजिए. ट्राई कीजिए कि जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो पास्ट में है या प्रेजेंट में. डोंट ट्राई एंड शो द फ्यूचर
anything, any sentence with is about the future, because it is imaginary. Understood? So you should be always your sentences made by the during the VAT test must always about the past or the present and not the future. Now I've come with a list of few words for your practice. I am showing it on the slide. You can see and try and make sentences. I am not giving you example, because what happens, you tend to basically remember them, memorize them, and again once during the test you are giving the test, you are trying to emulate it or you write down the same sentences. You must be giving out your pure responses, जो आपका पहले reaction आ रहा है, and you just have to filter कि वो negative reaction ना हो, positive हो. But you should avoid using the reaction of other people like mine or anyone else. जो आपके पहले रिएक्शन क्या आ रहे हैं वो यदि आप देंगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल सही निकलेगी और वो आपकी पर्सनालिटी से मैच होगी, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे और यू विल गेट सेलेक्टेड. ये और लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं. ये दीज आर जस्ट इंडिकेटिव. ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि मैं आपके लिए एक बार दे रहा हूँ कि इस पे इस तरह के आप और भी वर्ड्स निकाल करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक इट इज मच मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट. ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर जाएंगे या कम स्कोर कर जाएंगे. ये टेस्ट बेसिकली आपकी साइकोलॉजी निकाल रहा है कि इसकी एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है और उसको मैप कर रहा है या उसको चेक कर रहा है कि जो आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा है या ग्राउंड पे आप जो कर रहे हैं या इंटरव्यू में जो आप बोल रहे हैं उससे मैच होता है कि नहीं. अगर वो मैच होता है आप सेलेक्ट हो जाते हैं. अगर वो मैच नहीं होता है तो सॉरी, थैंक यू, कम नेक्स्ट टाइम बोल दिया जाता है. साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि यू मे नॉट बी फिट फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड आप हो सकता है कि अच्छे सीए बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे लॉयर बने, अच्छे राइटर बने. तो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग टोल्ड. नाउ कमिंग टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. व्हाट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट? इसमें जो टेस्ट के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिया जाएगा रिलैक्स करने के लिए. टेक टाइम टू रिलैक्स एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. आगे के एग्जामिनेशन के लिए अपने दिमाग को तैयार कीजिए. और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 2 या 3 लाइन में ही हर सिचुएशन का आपने जवाब देना है. कैसी सिचुएशन है, अब आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू. इस सिचुएशन में भी जो आपका थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में हमने बताया था कि सुपर हीरो बनाने की कोशिश मत कीजिए, स्पाइडरमैन सुपरमैन बनाने की कोशिश मत कीजिए हीरो को. यू आर ए सिंपल पर्सन और ऑनेस्टली जो आपको जो लगता है कि आपका जो रिएक्शन होगा वही रिएक्शन आपने यहाँ पे देना है. आपने सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल टाइप का रिएक्शन देने की कोशिश नहीं करनी है. कुछ ओवरडू करके ओवर पोर्ट्रे करने की भी कोशिश नहीं करनी. हमारी लाइफ में यूजुअली कई सिचुएशंस आती है. हमारी लाइफ जब यूजुअली हम 22-25 साल के एज तक जो भी हमारी सिचुएशंस हमने फेस की है, यूजुअली हमारे जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास्ट के रिएक्शंस के हिसाब से ही जो फ्यूचर में हम रिएक्ट करते हैं. जैसा कि आपने सुना होगा कि इफ यू वांट टू नो द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन यू मस्ट लुक एट द पास्ट. यदि आप उसका पास्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका फ्यूचर क्या है या क्या हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके रिएक्शन टेस्ट किए जाते हैं कि आप कैसे किसी गिवन सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे. नाउ टिप्स फॉर द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. देखिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो भी आपसे रिएक्शंस दिए जा रहे हैं वो बेसिकली आपके कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है कि यदि आप किसी सिचुएशन में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आप अकेले हैं और आपसे ज्यादा नंबर में, आपसे ज्यादा पावर में मे बी लोग हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी रिएक्शन डिफरेंट होगी. और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपका जो अपोनेंट है वो आपसे कमजोर है तो आपकी रिएक्शन डिफरेंट होगी. तो पहले तो आपने समझना है सिचुएशन को सही तरीके से कि आप किस सिचुएशन में हैं. क्या फाइट करने की सिचुएशन में है या फ्लाइट करने की सिचुएशन में. जो भी बेटर है आपके लिए, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन एंड यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वेरी फास्ट. तो कॉमन सेंस के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं और एक कुछ क्वेश्चंस के बाद सेम सिचुएशन दूसरे वर्ड्स और दूसरे तरीके से आपको दी जाती है. आपके रिएक्शंस डिफर नहीं करने चाहिए.
पहले सिचुएशन में आप लड़ रहे थे, 10 सिचुएशन के बाद आप भाग गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज और आपकी मैच्योरिटी और आपका जो पर्सनालिटी है, यू आर ए गुड स्पोर्ट्समैन, तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा। आप एक दुबले पतले और वीक पर्सन है, तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हर आदमी का रिएक्शन डिफरेंट होगा। और इसमें कोई जैसे हमारे स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वन ऑफ द अबव में कोई एक सही आंसर होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई स्टोरी, कोई आपका रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ड, सेंटेंस ऑफ द वर्ड या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सही या गलत नहीं होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो आपको सूट करता है या नहीं सूट करता है। इसमें सही गलत की कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है कि इसमें आपको नंबर मिल रहे हैं। ये आपके सिचुएशन के रिएक्शंस हैं जो कि आपको टेस्ट किए जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते, ये समझ लीजिए। सेम जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में निकलता है वही आपके ग्राउंड में परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो बी वेरी ट्रुथफुल, दैट इज द बेसिक एडवाइस फॉर एनीवन गोइंग फॉर द एसएसबी। आप ट्रुथफुल रहिए, सच बोलिए। सिलेक्शन नहीं होता है या नहीं होता है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक मिस्टर एक्स भी होते हैं। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि मिस्टर एक्स की लॉटरी लग गई, मिस्टर एक्स जो है किसी स्पेसिफिक कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए, उनको इतने पैसे मिल गए, अभी मिस्टर एक्स क्या करेंगे। तो अपने आप को अपने मिस्टर एक्स के सिचुएशन में रखना है और जो भी आप ओपिनियन देते हैं, जो उसका रिएक्शन देते हैं, तो यू दैट रिएक्शन इज बेसिकली योर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एज ए मिस्टर एक्स यदि आपकी लॉटरी लग जाती है तो आप मनी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या दान करेंगे, क्या यूज करेंगे, पूरा चैरिटी में दे देंगे या कुछ अपने लिए भी रखेंगे। अकॉर्डिंगली जो भी आपको सही लगता है अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर देना है और याद रखना है। ये शायद आपको इंटरव्यू में वापस पूछा जाए घुमा फिरा के, या ग्राउंड पे जीटीओ कभी घूमते फिरते भी इस क्वेश्चन को किसी और फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। तो जस्ट रिमेंबर मिस्टर एक्स। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर द एसआरटी, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास समय बहुत कम होता है, तो आपने बहुत ब्रीफ में, प्रिसाइजली, छोटे सेंटेंसेस में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। यदि जरूरत पड़े तो एब्रिविएशंस या कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। चूंकि आप आर्मी के इंटरव्यू के लिए आए हैं तो यू शुड नॉट लूज इन एनी सिचुएशन, यू मस्ट ट्राई एंड विन इन एवरी सिचुएशन। और आपके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत लॉजिकल होने चाहिए। इलॉजिकल रिस्पॉन्स है जैसे सुपरमैन, ह्यूमन मैन, सुपरमैन या स्पाइडरमैन टाइप के रिस्पॉन्सेज आपने नहीं देने, रैम्बो या वन मैन आर्मी टाइप के रिस्पॉन्सेज नहीं देने, रियलिस्टिक रिस्पॉन्सेज आपने देने। और किसी भी सिचुएशन का आपने बहुत ध्यान से सोच करके एज पर योर पर्सनैलिटी, एज पर योर थॉट प्रोसेस आपने उसका जवाब देना है। डोंट ओवरडू इट, डोंट अंडरडू इट। क्वालिटी मैटर करता है। आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम समय आपके पास कम रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिनिमम 40 एंड मोर आप ट्राई कीजिए, इसमें अटेम्प्ट कीजिए और इसमें अच्छे रिएक्शंस दीजिए 40। और ये ध्यान रखिए कि ये रिएक्शंस जो है रिपीट होते हैं, तो आपके रिएक्शंस या थॉट्स या प्रोसेस या रिस्पॉन्सेज कांस्टेंट होने चाहिए, दे कैन नॉट बी फ्लिकरिंग। एक सिचुएशन में आप सेम रिएक्शन कुछ अलग दिया था और सिमिलर सिचुएशन में आपका रिएक्शन डिफरेंट था, दैट शुड नॉट बी हैपन। और OLQs मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब चीजें OLQs में जो आपको मैं बताऊंगा अभी अगले लास्ट लेक्चर में, वो चीजों को आपने पोर्ट्रे करने की हर जगह कोशिश करनी है। डोंट शो कवर्डिस और फेयर, ये क्वालिटीज आर अनएक्सेप्टेबल। तो ये क्वालिटीज आप अवॉइड कीजिए कि ये चीजें आप प्रोजेक्ट ना करें अपनी पर्सनैलिटी में। और दीज आर द टिप्स विच यू मस्ट फॉलो फॉर द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, इसको देख करके आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है या किस तरह के सिचुएशंस आपको दी जा सकती हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग के दौरान आपसे कोई सिचुएशन, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इवन कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट में आस्क यू, मे गिव यू ए सिचुएशन टू सी और चेक सर्टेन ट्रेड्स और OLQs क्रॉस चेक करने के लिए कॉन्फ्रेंस में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको दिखाया जा सकता है कि किस तरह से आपको सिचुएशन देते हैं। ही डजंट फाइंड एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू स्टडी,
सो ही, अब आप क्या करेंगे यदि आपको सब्जेक्ट कोई इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो व्हाट डज दैट मीन, क्या करेंगे आप? तो आपको यहाँ पे एक रिएक्शन देना है, ही चेंजेस द सब्जेक्ट और ही ट्राइज मोर हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट। जो भी आपका सही आपको रिएक्शन लगता है उस तरह का आप रिएक्शन इसमें दे सकते हैं। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपने कैसे रिएक्शन देने। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिज कैप्टन वाज इंजर्ड बिफोर क्रूशियल मैच, ही वाज आस्क्ड टू लीड द टीम। आपका कैप्टन जो था, टीम का कैप्टन इंजर हो गया, आपको बताया गया कि आप टीम लीड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप लीड करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शन, यू कैन नॉट रन अवे। ठीक है, दीज आर द सिचुएशन जो कि आपको यूज करनी है, और इस सिचुएशन में आपको कई बार मौके दिए जाएंगे लीड करने के लिए या सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए। वो रिएक्शंस आपके सही होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये हमारे ई बुक्स में भी अवेलेबल हैं। यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ लॉट ऑफ सच एसआरटीज जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। He was driving the bike without the helmet and the traffic police caught him. क्या करेगा? ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, he was driving without a helmet. What is the right way of, fair way of action? वो apologize करेगा और फाइन पे करेगा, and he will promise he will never do it again. तो these are the qualities। यदि आपसे गलती होती है तो आपने गलती माननी है और उस गलती को आगे नहीं करने की कसम खानी। During the exams, his teacher threatened him to fail in the examination. आप क्या करोगे यदि आपको कोई टीचर थ्रेटन करते हैं कि हम आपको फेल कर देंगे? इग्नोर कीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऐसे ही कई सिचुएशंस हैं जो कि आपको दी जाएंगी। बीइंग ए टीचर यू कैन नॉट फाइट द टीचर, और देयर इज अनदर चेन ऑफ थॉट्स। आप इस चीज को प्रिंसिपल को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर राइट यू शुड नॉट बी fearful. नो वन कैन थ्रेटन यू टू फेल। इफ यू फेल दैट इज फाइन। पढ़ाई नहीं किए हैं, फेल हो रहे हैं, बट if someone threatens, so you should not take that threat. ये और आप देख सकते हैं कि इस तरह की कई सिचुएशंस हैं जो कि आपको दिया जाएगा और आप उस सिचुएशन में आपको रिएक्शंस देना है। अब एक सिचुएशन नंबर 48, इफ सम ऑफ योर फ्रेंड क्रैक्स ए जोक इन प्रेजेंस ऑफ योर गर्लफ्रेंड, व्हाट विल यू डू? बताइए आप क्या करेंगे? यू विल जॉइन देम इन लाफिंग, isn't it? You should have that sense of humor. What if the girlfriend is present, isn't it? तो डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू फाइट यू कैन फाइट एंड यू कैन राइट दैट यू विल लाइक टू फाइट। तो डिपेंड्स आपका क्या सिचुएशन का रिएक्शन है, वो सिचुएशन का रिएक्शन आपने, ऑनेस्ट रिएक्शन आपने देना है, जैसे कि मैंने अभी देने की कोशिश की। He was watching a movie in the cinema hall. He sees a snake in front of his leg. What will he do? सबसे पहले वो लाइट्स ऑन करेगा, अंधेरा रहता है, और स्नेक के ऊपर फोकस करेगा, बाकी लोगों को बताएगा स्नेक है, हटिए यहाँ से, एंड ही विल ट्राई एंड रेज एन अलार्म, तो कि कोई भी स्नेक कैचर आकर के पकड़ सके, और अगर वो खुद क्वालिफाइड है या खुद उसमें इतनी हिम्मत है तो स्नेक को पकड़ के बाहर ले जाए। अंडरस्टूड? विद दैट डिपेंड्स अब आपका क्या रिएक्शन है। मैं ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट, लेकिन ये रियलिस्टिक एग्जांपल होना चाहिए। यदि आप नहीं पकड़ सकते हैं स्नेक को तो आप उसके ऊपर लाइट डालें, अलार्म रेज करें, ताकि लोग, इफ इट इज ए पॉइजनस, इट कैन बी ए पॉइजनस, इट कैन बी ए नॉन पॉइजनस स्नेक, आप अलार्म रेज करें, लोग हट जाएं, और आप अलार्म रेज करेंगे तो सिनेमा हॉल के लोग जो हैं, मैनेजमेंट के लोग जो हैं, दे विल कम एंड डू द नीडफुल। इससे एक और सिचुएशन आपको दी गई है कि इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स यू फील, आप कैसा फील करते हैं यदि आप स्ट्रेंजर्स के साथ में हैं, और तो हाउ डू यू फील लोनली, यू फील नॉर्मल, डिपेंड्स आपके जो भी रिएक्शन है, यू हैव टू गिव these reaction. Basically a situation reaction test is there to take out, is a part of psychological test, and it is trying to take out the psychology. तो try and give the correct psychology to the psychologist, otherwise वो psychology आपके ग्राउंड में और इंटरव्यू में मैच नहीं करेगी, and this will create contradictions and you will not get selected. So please ensure that your reactions
should be honest and correct one. Now we come to the part 2 of the psychological test, that is the self description. Self description is basically describing yourself. इसमें आप अपनी पर्सनालिटी का खुद का डिस्क्रिप्शन देते हैं. आप ये भी बताते हैं कि आपके मित्र आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, कोलीग्स क्या सोचते हैं. ये जो डिस्क्रिप्शन आप देते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्राउंड टेस्ट ऑफिसर के पास में भी जाता है, जिसके हिसाब से वो आपको चेक करता है कि जो आपने बताया है या जो आप अपने बारे में सोचते हैं, क्या वही आप बोलते हैं, क्या वही आप करते हैं, और क्या वही आपकी साइकोलॉजी है, एक्चुअल ट्रुथ है कि नहीं है. तो आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बेसिक जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है. बेसिकली वो आपको किस ग्राउंड्स पे टेस्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से चेक कर रहे होते हैं. तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कैसा होता है, लेट्स हैव अ लुक. तो मेन डिस्क्रिप्शन जो रहता है इसमें, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको बोला जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो ये सारी चीजों के साथ में एक पिक्चर या पेन पिक्चर आपकी बनती है, जिसमें आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, ये मेरे नेगेटिव क्वालिटीज हैं. लेट्स कम टू द टेस्ट सीन. वहां पे किस तरह से साइकोलॉजिस्ट विल कमांड you to write about yourself, your strength and weaknesses, write about your parents, write about your teachers, write about your friends, or he can say what your parent will say about you, what your friend will say about you, what your teachers thinks about you, what your friend says about you. Write about yourself. तो इसका बेसिकली टेस्ट का मकसद ये होता है कि आपकी मैच्योरिटी को टेस्ट करें और आपका अपने बारे में नॉलेज को टेस्ट किया जाए कि आप एक्चुअली क्या सोचते हैं अपने बारे में, आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, जो आपकी सोच है आपकी अपनी पर्सनालिटी और अपने बारे में, वो क्या है. तो प्रिपरेशन ये जो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन की प्रिपरेशन आप एसएसबी से पहले कर सकते हैं. आई यूजुअली आस्क यू कि इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आप सोचिए, जब आप अपने वीकनेसेस के बारे में सोचेंगे आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. और यूजुअली ये देखा गया है कि जो आदमी अपने वीकनेसेस को जानता है और उसके ऊपर वर्क करता है, तो यूजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड विद द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल कि उनकी जो वीकनेसेस होती हैं वो उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज उन्होंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की होती है. और जो आपकी स्ट्रेंथ होती हैं यूजुअली यू विल फाइंड कि वो थोड़ा नेग्लेक्टेड रह जाती है, बिकॉज वी थिंक कि ये तो मेरे को आता ही है, ये मेरी स्ट्रेंथ है. तो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो वीकनेसेस हैं दे शुड यू मस्ट कवर अप ए लॉट ग्राउंड्स. यदि आप यहाँ पे देखते हैं कि मेरी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है या पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर आपने ऑलरेडी वर्क इतना किया होना चाहिए कि वो इतना लगना वहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखना चाहिए, और आपका उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हुआ है या इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, ये जरूर दिखाई देना चाहिए, ये जरूर पता चलना चाहिए. तो इसको जो भी आपके लिए टाइम रहता है बहुत कम रहता है, 10-15 मिनट के टाइम में आपने इसको पूरा कंप्लीट करना होता है. आपने इसमें अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके बारे में लिखना है. और नेगेटिव पॉइंट्स आपने अवॉइड करने कि मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, बहुत आलसी हूँ, सुबह उठ नहीं पाता, दौड़ने नहीं जाता हूँ. इस तरह के पॉइंट्स आप यदि अवॉइड करें तो बेटर होगा. और इसमें जितना जेन्युइन आप हो सके, जितना करेक्ट हो सके, और लाइफ की सिचुएशन से कोरिलेटेड आपके एक एक शब्द होने चाहिए. बिकॉज व्हाट विल हैपन कि यही शीट आपकी जाएगी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, एंड ही विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट यू हैव रिटन इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आपने लिखा है कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप बहुत करेजियस हैं, बहुत आउटगोइंग है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं. ही विल आस्क यू examples from your life on each of these words and situations which you have depicted या written here in your self description. तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने लिखा है कि आप किसी की मदद करते हैं, he will ask you a lifetime situation कि आप बताइए, आपकी लाइफ के एग्जाम्पल बताइए, आपने कब ऐसा किया. ठीक है, you might tell one example, then he will ask you another, then he might ask you one more. तो यदि आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका पुख्ता सबूत आपके पास एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए, जो आप वहां प्रेजेंट कर सकें.
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, प्योरली एग्जाम्पल है। आप अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन डिसाइड करेंगे। ये एक जस्ट एग्जाम्पल आपको ट्रेनिंग पर्पज के लिए दिया जा रहा है। सेल्फ ओपिनियन, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कैंडिड, रिस्पॉन्सिबल बॉय, आई वांट टू डू माई थिंग सक्सेसफुली, आई एम कॉन्फिडेंट विथ माई थिंकिंग एंड एनालिसिस, आई कैन I am able to convince my surroundings with my points. I used to do exercise regularly to keep myself fit. The games I'm playing is table tennis. Hobby is blogging. I want to satisfy my surrounding people with my extent and love to keep them happy. Things to improve. I want to develop my technical skills. I'm working on it, and I'm putting extra time, and I'm taking extra course for that. So this situation you can will be as per your situation. आप जो कर रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी जैसी है, आपका बैकग्राउंड जैसा है, उसके हिसाब से ये आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कॉपीड नहीं होना चाहिए किसी का, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। आपके फ्रेंड के ओपिनियन, ये भी हमेशा आपके पॉजिटिव रिएक्शंस होने चाहिए। टीचर्स के ओपिनियन, पेरेंट्स के ओपिनियन, इट शुड बी गुड, इट शुड नॉट बी बैड ओपिनियंस। क्योंकि अगर आप क्लास के बैक बेंचर हैं और अगर आपके टीचर्स आपको लाइक नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इट गोज अगेंस्ट यू, यू आर नॉट ए गुड पर्सन। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इफ यू वांट टू लुक फॉर समवन्स फ्यूचर, यू हैव टू लुक एट देयर पास्ट। पास्ट में अच्छा था तो फ्यूचर अच्छा होगा, पास्ट में खराब था तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली। So you have to give a positive feedback about your personality, and it should be realistic and correct and honest opinion. बेस्ट होगा कि आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से ये ओपिनियन लीजिए, तो दैट विल बी द मोस्ट रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट ओपिनियन विच यू कैन गेट बिफोर गोइंग टू द एसएसबी। और जैसा मैंने पहले बोला, साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज द थिंग विच यू कैन प्रिपेयर नाउ। बाकी चीजें, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये सब टेस्ट की तैयारी आप अभी नहीं कर सकते। वहां पे क्या सिचुएशन आएगी, कौन से वर्ड्स आएंगे, यू डोंट नो, एंड देयर इट इज यूजलेस टू प्रैक्टिस making sentences out of words or making stories out of pictures right now. Rather, you should devote your time on your personality, thinking about yourself, thinking about the OLQs कि इस OLQs में क्या क्या मेरे में है, क्या क्या मेरे को डेवलप करने हैं, और क्या क्या लाइफ के सिचुएशंस हैं जिसमें मैंने ये OLQs दिखाए थे। वो आपने कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू और जब भी आपको मौका मिले साइकोलॉजिकल टेस्ट में या स्टोरी में, हीरो के पर्सनालिटी में, उन चीज़ों को डिपेक्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।